Good morning, students. How are you? Fine. We have already understand all the basics of ratio and proportions. Ratio और proportion का introduction मैं दे चुका हूँ. Now let us start our exercise 12.1. Our first question is, there are 20 girls and 15 boys in a class. Now we have to calculate what is the ratio of the number of boys, number of girls to the number of boys. So number of boys, number of girls to the number of boys का हमें रेशियो निकालना है. And the second part, what is the ratio of girls to the total number of students in the class. Now let us start the explanation of part number 1. So there are 20 girls and 15 boys in the classroom. So we have to find the ratio of required ratio. The part number A, required रेशियो. रेशियो किस चीज की निकालनी है हमें? नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 20. नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 15. इनका एचसीएफ कितना है? कॉमन मल्टीप्लायर क्या है इनका? 5. सो 5 3 जा 5 से कैंसिल होगा, 5 3 जा 5 से ये भी कैंसिल होगा, 5 4 जा तो 4/3. तो एक्चुअल रेशियो क्या है? 4:3. आंसर क्या होगा? 4:3. इन द सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गर्ल्स. तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमें पता है, पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने? पहले हमें कैलकुलेट करना होगा. टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज. तो 20 प्लस 15 35. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 35. नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35. सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगी हमारे पास? रिक्वायर्ड रेशियो विल बी इक्वल टू ratio of number of the girls to the number of total boys, total students. So number of girls, number of girls जितनी भी given हमारे पास, divided by total students. So number of girls हमारे पास वही 15 है, पर total number of student कितने हैं हमारे पास? 35. फिर से इनका एचसीएफ कितना है? 5 कॉमन मल्टीपल, तो 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा एंड 5 7 जा, तो रेशियो क्या आ गया? 3:7. 3/7. सो आंसर हो गया 3:7. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.
In the question number 2, out of 30 students, in a class, 6 like football, 12 like cricket, and remaining like tennis. So find the ratio of followings. First one, the number of students liking football to number of students liking tennis. Next part number A and part number B. In the next part, number of students liking cricket to total number of students so in the first of all, what data is given? So here total number of students are 30. 6 students like football, 12 students like cricket, and how many students remains? 12 more students. So remaining कितने बच गए? 12 students who like tennis. So first of all we have to find the how many students like tennis. So here number of students, total number of students is equal to 30. Then number of students who like football, number of students who like football is equal to 6. Number of students like cricket कितने हैं? 12. So number of students like tennis is equal to 30 minus 6, 12 minus 6. So यहां से कैलकुलेट करेंगे तो we get 12 students. तो तीनों चीजें आ गई हमारे पास, number of students who like football, number of students who like cricket, and number of students who like tennis. Now let's solve part number 1. For the part number 1, we have to find the ratio of the number of the students. या लिख देते required ratio. Required ratio क्या है? Number of students like football
liking football upon number of students liking टेनिस। सो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ फुटबॉल लाइक करने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 6, और टेनिस लाइक करने वाले हैं 12। दोनों 6 से कैंसिल हो सकते हैं, तो 6 1 6, 6 2 12, तो 1/2। सो आंसर इज 1/2। इन द नेक्स्ट पार्ट नंबर B, required ratio is number of students like cricket upon total students। So number of students who like cricket are 12, and what is the total students? Total student कितने? 30। तो 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 2 12, 6 5 30। So ratio is equal to 2/5, तो it becomes 2:5, और इसकी रेशियो क्या है? 1:2। सो ये हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर। तो इफ पॉसिबल आप इनको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3rd। इन द क्वेश्चन नंबर 3rd, सी द फिगर and answer the followings and find the ratio of followings. So part number 1, A, number of triangles इस डायग्राम में कुछ ट्रायंगल्स किए मैंने, कुछ स्क्वायर भी किए मैंने, कुछ सर्कल भी किए मैंने। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स, सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो नंबर ऑफ सर्कल्स के साथ हमें फाइंड करना है पार्ट नंबर 1 में। सेकंड में, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स to the number of all figures, total number of all figures। Now inside this triangle, in the rectangle, in given rectangle, बड़ा बाहर का भी रेक्टेंगल है, उसे नहीं काउंट करना है आपको। in rectangle you have to count all the inside figures। next, number of circles to total number of figures inside of rectangle। So here let us find, first of all write how many triangles we have, how many rectangles we have, squares we have, and how many circles we have। So here number of triangles
many triangles? There are 3 triangles. Number of squares, 2 square. Number of circles, 2 circles. So total number of figures, 2 plus 2 plus 3. So 2 plus 2 plus 3, it becomes 7. So here we have number of triangles we have, number of squares we have, number of circles we have, and also number of total figures. So now it is easy to calculate our given question. In the part number A, required ratio is so number of triangles, total number of to the number of the circles, number of circles. So number of triangles कितने हमारे पास? 3. नंबर ऑफ सर्कल्स हमारे पास कितने हैं? 2. तो रेशियो कितना हो गया? 3:2. in the part number B, required ratio is it is equal to the number of the squares upon total number of figures, total figures. So number of squares हमारे पास 2 ही है और total figures हमारे पास 7. तो इसका रेशियो क्या आया? 2:7. Next, part number C, required ratio, number of circles upon total figures. So number of circles भी हमारे पास 2 ही है और total figures 7. तो again 2:7 रेशियो हो जाएगा. Clear? Next, question number 4. The distance traveled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 kilometers and 12 kilometers respectively. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar. So we have to calculate the ratio of their speeds also. So यहाँ पर हमारे पास distance covered by them given है, time भी given है. So first of all we have to show their speeds, respective speed. Distance traveled by
हमीद इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। हमीद ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 9 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1 आवर। सो स्पीड कितना हो गया ऑफ हमीद इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद, यहां पर हमें कौन सी डिस्टेंस लेनी है? ट्रेवल्ड बाय हमीद। तो 9 किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय हमीद अपॉन 1, सो 9 आएगा। तो 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ हमीद। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आफ्टर हमीद, अख्तर की बारी है। अख्तर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। टाइम टेकन अगेन 1 आवर। तो स्पीड कितना हो गया? स्पीड ऑफ अख्तर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर अपॉन टाइम टेकन बाय अख्तर। सो इट इज इक्वल टू 12 by 1, इट इज इक्वल टू 12 kmph, 12 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। सो नाउ वी हैव टू फाइंड देयर रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। दोनों की स्पीड हमारे पास आ गई है। नाउ रिक्वायर्ड रेशियो, स्पीड ऑफ हमीद अपॉन स्पीड ऑफ अख्तर। तो स्पीड ऑफ हमीद कितना है? 9। स्पीड ऑफ अख्तर 12 किलोमीटर पर आवर दोनों की। सो 3 से कैंसिल है दोनों, 3 3 9, 3 4 12, तो 3/4। 3/4 को क्या लिखेंगे? 3:4। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या हो गई? 3:4। तो दोनों की रेशियो हमारे पास क्या होगी अब? 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्वेश्चन नंबर 5, fill in the blanks. Following blanks. अब डाटा किस तरह आपको गिवन है? 15/18 it is equal to blank box upon 6. It is equal to 10 upon blank box. It is equal to blank box upon 30. अब यहां इक्वल का सिंबल है, इट मींस ऑल आर ऑफ इक्विवेलेंट रेशियो। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय द 2 मेथड्स। फर्स्ट वन, पहले मेथड में देखिए कि हम इसको बाय पार्ट्स में तोड़ते हैं। फर्स्ट वन हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं। 15/18 इज इक्वल टू, इसे हम मान लेंगे x, इसे y और इसे z। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अपॉन 6। तो यहां पर हमारे पास क्या है? x दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो x अगर हमें सॉल्व करना, इस तरह की इक्वेशन कभी सॉल्व करनी हो, तो यहां हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 को x से। तो 15 इंटू x, 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 इंटू x। तो यहां से x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो x इज इक्वल टू व्हाट?
18 यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दीजिए, 15 इंटू 6 अपॉन 18, जो कैलकुलेट होगा जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। देखिए 6 1 6, 6 3 18, 3 1 3, 3 5 15, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ गया 5। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, क्या आंसर आया 5। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन को दोबारा मेथड को सॉल्व करें तो 15 अपॉन 18 इज इक्वल टू x अपॉन ब्लैंक अपॉन 6, कुछ ऐसे था। तो यहां पर आप देखिए कि 18 को किससे डिवाइड करें कि वी गेट 6, हमें पता है 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 6, सो वी हैव टू डिवाइड 15 आल्सो बाय 3, तो 3 5 is 15, you can calculate it 15। so वैसे ये मेथड अगर आप सीखते हो तो आपको अलजेब्रा में भी काफी हेल्प मिलेगी, बाकी आपकी मर्जी है। मैं ये कहूंगा कि आप इस मेथड से नोटबुक में सॉल्व करें, और एमसीक्यूज को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। 15 अपॉन 18 इज इक्वल टू 10 अपॉन y, 10 अपॉन y। अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 15 इंटू y, क्या वैल्यू होगा 10 इंटू 18, यहां से हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो y इज इक्वल टू व्हाट 10 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 15। तो कैंसिल हो रहे हैं कुछ, यस, यहां से 5 से कैंसिल है दोनों, 5 3 5 2 3 से कैंसिल है, 3 1 3 6 18, और 2 6 कितना हुआ 12। ऊपर वाले टर्म आपस में कैंसिल नहीं होंगी, कभी आप 2 3 से 6 कैंसिल करते हैं नहीं, एक टर्म ऊपर से तो एक टर्म नीचे से, ऐसे कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो अब y का वैल्यू कितना आ गया 12, तो यहां पर क्या आएगा 12, यहां क्या आया था हमारे पास 5। नाउ थर्ड पोर्शन, इन द थर्ड पार्ट 15 अपॉन 18 इट इज इक्वल टू z अपॉन 30। सो यहां से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो z की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो गई, z इंटू 18, और यहां पर 15 इंटू 30। अब 18 z से मल्टीप्लाई है, तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 18, इट इज इक्वल टू व्हाट z। तो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 3 6 5 3 1 3 3 5 15, तो 5 5 25, तो z का वैल्यू कितना आया 25, तो z इज इक्वल टू 25। तो इस केस में यहां पर क्या वैल्यू आई 25, तो z की वैल्यू 25, y की वैल्यू कितनी आई 12, और x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू होगी हमारे पास 5। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। In the question number 6, find the ratio of followings. In the first part 81 to 108. In the second part 98 to 63. In the third part C 33 kilometer to 121 kilometer. In the part number D 30 minutes
to 45 minutes. So we have to just find the ratio of the all. So in the first part, it required ratio is equal to 80 on 108. So कितने से कैंसिल हो रहा है? 3 से कैंसिल है. 8 plus 1 9, 8 plus 1 3 से कैंसिल है दोनों. तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21. फिर 3 से कैंसिल है, ये भी 3 3 जा 9, 3 6 जा 18. ये 3 से कैंसिल है, 3 9 जा 27. ये भी 3 से कैंसिल है, 12. 3 से कैंसिल है, 3 3 जा 3 से कैंसिल है 4. तो हमारी रेशियो क्या आई? 3:4. Our required ratio is 3:4. This is the solution of part number A. Now the part number B. Required ratio is it is equal to 98 upon 63. So ये 7 से डिविजिबल है दोनों नंबर. 7 9 जा 7 1 जा 7 2 जा 7 4 जा 28. तो 14 upon 14:9. Required ratio क्या आएगा? 14:9. Now come to the part number C. The required ratio is equal to 33 kilometer upon 121 kilometer. So both the number are divisible by 11. You can see. So 11 3s are 33. 11 से कैंसिल है, 11 11 जा. तो 3:11 हमारा क्या होगा? आंसर. This is part number 3. C. Next part number D. Required ratio is थर्टी मिनट्स अपॉन 45 मिनट्स. 15 से डिविजिबल है दोनों. 15 2 जा 13, 15 3 जा 45. तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? 2:3. This is question number 6. Now question number 7. In the question number 7, find the ratio of followings. So the first part is given to be 30 minutes to 1.5 hours. Part number B, 40 centimeter to 1.5 meter. Part number C, 55 paisa to 1 rupees. Part number D, 500 ml to 2 liter. In the part number A, required ratio is equal to 30 minutes upon 1.5 hours. अब यहाँ पर दोनों की यूनिट अलग अलग है, मिनट और आवर. So we have to convert hour into the minutes. So 30 minutes upon 1.5 into 60 minutes. अब दोनों की मिनट्स हो गई यूनिट, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 30 अपॉन 1.5 into 60. So 30 1 30, 30 2 60. इसको मल्टीप्लाई करो 1.5 को 2 से, we get 1.5 into 2 3. तो रेशियो क्या हो गया? 1:3.
Required ratio is 1:3. Now let us calculate the second part number B. यहाँ पर required ratio क्या होगा? Required ratio is equal to 40 centimeter upon 1.5 मीटर. So we know भाई इसका यूनिट क्या होता है, ये 40 सेंटीमीटर है. 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर. अब दोनों सेंटीमीटर में होगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं 40 अपॉन 1.5 और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 15 अपॉन 10. तो 10 ऊपर चला जाएगा. इसका डेसिमल पॉइंट हमने हटा दिया है, यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ हमने हटा दिया. हटाएंगे तो 15 अपॉन 10, जो 10 अपॉन होगा वो यहाँ चला जाएगा अपॉन 100. 0 से 0, 10 से 10, तो आंसर हो गया 4 अपॉन 15. अब ये दोनों आपस में कोप्राइम नंबर है, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो आंसर होगा हमारे पास 4:50 रिक्वायर्ड रेशियो. नाउ सिमिलरली कम टू द पार्ट नंबर C. In the part number C, the required ratio it is equal to 55 पैसा 55 पैसे अपॉन 1 रुपीज. फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों की यूनिट को सेम करेंगे. सो इट बिकम्स 55 पैसे अपॉन 100 पैसे. 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं. सो वी राइट इट हियर सिंपली 55 अपॉन 100. 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 0. 5 को 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 20 आ जाएगा. 11 अपॉन 20. अब दोनों को प्राइम है तो 11:20 हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा. नाउ कम टू द लास्ट पार्ट. पार्ट नंबर इज D. So here the required ratio is equal to 500 ml upon 2 liter. So 500 2 liter 500 ml into 2 into 1000 ml. 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml. इसे सिंप्लीफाई करो तो 5000 अपॉन 2 into 1000. तो 5000 को कैंसिल करेंगे तो 1:2 में कट जाएगा. तो इसका रेशियो क्या होगा 2 2 जा 4. रिक्वायर्ड आंसर इज 1:4. So these are all the 4 points, 4 parts of the question number 7. So solve all these parts in your fair notebook and then send the solution to me. Thank you.